Hello students, this is the first chapter in your NCERT syllabus, especially in class 10, that is chemical reactions and equations. सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे? First of all we have to discuss about what is the meaning of the chemical reactions, how the chemical reactions are supposed, how the chemical reactions are take place, and how the chemical reactions get participated to form one product in another product, and when these chemical reactions are take place with each other, then this type of reactions we are going to show in the form of equation, especially in our answer sheets. अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। पहला चैप्टर बेटा इस बात का कॉन्सेंट्रेट है। इस चैप्टर में सबसे पहले चेकआउट ये करने वाली बात है कि क्लास 9, देखो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ क्लास 9 विच इज़ योर प्रीवियस क्लास। इस क्लास में आप लोगों ने एक चैप्टर रीड आउट किया था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। याद कर लीजिए आप, atoms and molecules, the smallest substances which occupied space and have mass which is not further divided, that particle, that smallest invisible particle which is known as atom, and the combination of atom, when atom and atom are going to combine with each other, they take place in the form of molecule. So first of all, when we take out in the form of the atom, तो we should know the atomic number. हमें बेटा सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए. When we know the atomic number of any atom, and what is the meaning of the atomic number? Atomic number is the particular number because all the atom which are exist in the nature, exist, exist in the nature in the form of 3 subatomic particles. पुरानी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, कहीं उसमें कुछ नया नहीं है. That is proton, electron and न्यूट्रॉन. तीनों पार्टिकल्स के चार्जेस आप लोगों को मालूम है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें. That protons are the particular subatomic particles which has the positive charge. Electrons are the particular subatomic particles which possesses the negative charge. And the neutron are those particles which has no charge and it is over or zero. That's why it is known as neutral form, and the name is, यहाँ पर इसको हम लोग न्यूट्रल से न्यूट्रॉन के रूप में जानते हैं. अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि व्हेन वी रीड आउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, तो क्लास 9 में बेटा आप लोगों ने देखो 2 चीज़ें पढ़ी थी कि इफ वी मेक एनी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, सो दिस इज द सेंटर पॉइंट विच इज नोन एज द न्यूक्लियस. अच्छे तरीके से आपको मालूम था कि दैट इज नोन एज द nucleus, and all the inside the nucleus how many subatomic particles which are embedded, कौन से subatomic particles न्यूक्लियस में होते हैं और कौन से subatomic particles जो हैं वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं. ये चीज़ आपको केवल माइंड के अंदर रखना है. तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन याद कर लीजिए, आप लोग समझ लीजिए कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये 2 पार्टिकल्स हमेशा embedded in the nucleus. तो मैं लिखे दे रहा हूं P plus N. That is P plus N, proton plus neutron. These 2 particles are always embedded in the nucleus, and only the electrons, केवल electrons याद रखना, take participate in the orbitals. These are the shells. इसको आप लोगों ने किया होगा 9th क्लास में. फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल.
द नेम ऑफ द शेल दैट इज के, पता है आप लोगों को। द सेकेंड शेल दैट इज एल शेल, तीसरा दैट इज एम, एंड फोर्थ वन इज दिस एन। These are the shells number in which the different type of energies are required to hold the electrons which revolve around the force of the nucleus. Inside the nucleus there are the particles which is known as the subatomic particle, and that subatomic particle is proton, and proton is always positively particle, and those particles which revolve around the nucleus that is known as the electron. So electron is always electrically negative. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा निगेटिवली रहते हैं, प्रोटॉन्स हमेशा पॉजिटिवली रहते हैं. बाय द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. विद द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू सर्वाइव inside the shell due to the force of the proton, positive and negative. The opposite charges, आपको मालूम अच्छी तरीके से, ये कोई नई बात नहीं है. Opposite charges always attract each other, like charges always repel each other. So this has the positive charge, this has the negative charge. तो दोनों charges एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं, attract कर रहे हैं. Now the condition arises when the electron get revolve inside the orbital, so they revolve in the systematic manner. कितने इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, इसको हम लोग एक नए सिक्वल में जानते हैं. दिस इज द न्यूक्लियर, दिस इज द फर्स्ट शेल, एंड इन फर्स्ट शेल दिस शेल इज नोन एज द के शेल, एंड के शेल हैज द मैक्सिमम कैपेसिटी 2 electrons. Maximum capacity 2 electrons. This is, अब आप देखिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ. द फर्स्ट शेल दैट इज नोन एज द के शेल. अब देखो के के बाद अब ये दूसरे नंबर का शेल है, मैं यहाँ पर देखिए एरो लगा रहा हूँ, दैट इज एल शेल. दिस एल शेल हैज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 8 electrons. Now in the third condition, 1, 2 and 3. This is the third shell which has the M, जिसका नाम M shell है. यहाँ पर एक समझने वाली बात है, it has the 2 capacities always. In the first shell, पहले वाला शेल, दूसरे वाले शेल में हमेशा एक चीज़ आप लोग मान करके चलिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम आर ऑलवेज 2 and 8. यहाँ पर मिनिमम प्लस मैक्सिमम. इन बोथ कंडीशन ओनली 2 electrons आर एबल टू सर्वाइव इन द फर्स्ट ऑर्बिट. कहने का मतलब यह है, कभी भी हम लोग किसी भी एटम का जब हम लोग एटॉमिक नंबर जानते हैं, एटॉमिक नंबर से कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को जब हम लोग फिलअप करते हैं, तो फिलअप करने के लिए हमें पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 electrons को ही सर्वाइव करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसा रूल है. 2 electrons से अगर कम इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास हैं, तो वो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी लेवल पहला जो कि प्रोटॉन से बहुत नज़दीक है, इसका फोर्स तब काफ़ी है, इसलिए सिंगल इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में सर्वाइव नहीं कर पाता है. Second, that is known as the L shell. It has also the maximum, minimum and maximum capacity, which is known as the 8 electron. यहाँ पर भी बेटा मिनिमम कुछ नहीं है, मैक्सिमम ही है. तभी मैंने देखो एक बॉक्स बनाया है कि माने यहाँ पर 8 होना ही चाहिए, इससे कम में काम नहीं बनेगा. इसको माइंड में बसा लीजिए हमेशा के लिए आप लोग, क्योंकि बार बार हम लोग केमिस्ट्री में इस चीज़ पे आएंगे. तो अभी से ये फर्स्ट यूनिट है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कर लीजिए अपना, फिर मैं बाद में इसको डिटेल में लेकर के कई बार आऊँगा. एम शेल, यहाँ पर बेटा पॉसिबिलिटीज़ 2 हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम. मैक्सिमम कैपेसिटी दैट इज 18 electrons. बात को पकड़ लेना, माने 18 electrons तक आप थर्ड शेल में सर्वाइव कर सकते हैं. माने आपके पास 18 electrons तीसरे में होना चाहिए.
बट द कंडीशन अराइजेस। यहाँ पर एक साइंटिस्टों के बीच में एक बहस ये हुई कि अगर मान लो 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नहीं हैं तब क्या हो। दो में तो चलो रिक्वायरमेंट समझ में आई, क्योंकि अब देखो हम लोग सीधे सीधे देखो न्यूक्लियस से बेटा दूर होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जब बढ़ रही है तो क्या 18 इलेक्ट्रॉन्स ही केवल जब कंप्लीट पैटर्न में रहेंगे तभी वो स्टेबल रह सकते हैं, ऐसा कुछ चला था। बाद में निकल के आया कि नहीं, इफ़ यू हैव टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, अगर आपको 18 हैं आप भेज दो, नो नीड टू टेक टेंशन। बट व्हाट इफ यू नॉट हैव द 18 इलेक्ट्रॉन, तो क्या कुछ कम भी इसमें सर्वाइव कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। वो रूल एक बना अलग से, और उस रूल को सब लोगों ने समझा ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। ये ऑक्टेट रूल जब निकल करके आया तो इस रूल ने दो संभावनाएं बना दी कि माने अगर आपके पास टोटल 80 नहीं है तो आप 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस लेवल में सरवाइव कर सकते हैं। बेटा ढंग से समझ लेना इस चीज़ को, क्योंकि बस यहीं से पूरा गेम स्टार्ट होगा। 8 इलेक्ट्रॉन्स तीसरे वाले शेल में अगर आपके पास मिनिमम हैं कम से कम, तो भी ये दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा। माने यहाँ आप 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग मिनिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग थर्ड वाले शेल में ला सकते हैं। अब इसके बाद फोर्थ कंडीशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ शेल को हम लोगों ने के, एल, एम और एन शेल, दैट इज द एन शेल। इसमें बेटा सबसे पहले बात करेंगे कि मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी होना चाहिए 32 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कंप्लीट 32 इलेक्ट्रॉन्स का एक पूरा पैकेज है, आप फोर्थ लेवल में आसानी से प्रवेश कर जाएंगे, आपको कहीं कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर से वही कंडीशन कि थर्ड के लिए ऑक्टेट रूल जब बना तो उसमें ये देखा गया कि एन शेल के लिए भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ नहीं हैं तो क्या फोर्थ शेल तब तक नहीं खुलेगा? नहीं खुल जाएगा। तो यहाँ पर बेटा जो मिनिमम कैपेसिटी है दैट इज 18। बस यही मैजिक नंबर है, इस चीज़ को आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए। 2, 8, 8 एंड 18, 2 and 8 आर मिनिमम एंड मैक्सिमम, बट 8 and 18 आर मिनिमम एंड मैक्सिमम, 2 पॉसिबिलिटीज। 18 and 32 मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज। तो कंडीशन यहाँ से बेटा देखो ये बनती है। अब फिर से बात होती है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर्म में आप किसी भी सब्सटेंस को बेटा पुट आउट करते हो। सब्सटेंस के 3 फॉर्म आपने देखे हैं, दैट इज एलिमेंट, कंपाउंड एंड थर्ड वन इज मिक्सचर। अब 9th क्लास में आपने देखा था कि एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, एलिमेंट आर द प्योरेस्ट फॉर्म, प्योर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं आयरन, हम लोग बात करते हैं गोल्ड, हम लोग बात करते हैं सोडियम, हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम। मैं देखो सिंबल से भी बता रहा हूँ, नाम से ही बता रहा हूँ। आयरन बोल रहा हूँ तो सिंबल में मैं ऐसे बोलूँगा, गोल्ड बोल रहा हूँ तो मैं सिंबल में AU बोलूँगा। FE में क्यों बोलूँगा? क्योंकि आप जानते हो 9th क्लास में पढ़ के आओ, ये सब लेटिन नेम्स हैं कि आयरन की स्पेलिंग आई से स्टार्ट है, लेकिन हम लोग लेटिन में, ग्रीक लेटिन वर्ड में FE जो है वो बना हुआ है फेरम, पता होगा। गोल्ड जो है वो बना हुआ है ऑरम। तो इसलिए हम लोग ये सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं। सोडियम आप जानते हो अच्छी तरीके से नेट्रम, इसलिए नेट्रम के लिए हम लोग Na का यूज़ करते हैं सोडियम में। मैग्नीशियम जानते हो आप लोग, मैग्नीशियम की स्पेलिंग Mg मैग्नीशियम में आता है, तो इसलिए हम लोग मैग्नीशियम। तो आप देखोगे ये जो 4 आपके सामने जो हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब नेचर में हमने इनको निकाला तो ये कौन सा फॉर्म है? क्या एलिमेंट है, कंपाउंड है कि मिक्सचर है? तो प्योरेस्ट फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे, अब यहाँ से
2 मिनट के लिए आप लोग देखेंगे कि यहां पर दिस इज द आयरन शीट, एक लोहे की चादर है। आयरन शीट में आप देखोगे कि किसी भी पार्ट को अगर आप हैमराइज करेंगे, इसको आप हटाएंगे, तो आप इतने बड़े शीट में से अगर ये वाला स्क्वायर भी निकालते हैं तो इसके जो एटम्स हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं, वो किस चीज़ के हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ये पूरी शीट अगर आयरन की है तो ये वाला पार्टिकल गोल्ड का निकले, या यहाँ से आपको सोडियम मिल जाए, या यहाँ से आपको मैग्नीशियम मिल जाए? नहीं, पूरी शीट में आपको जितने भी पार्टिकल्स हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म में आपको मिलेंगे। और प्योरेस्ट फॉर्म में जब मिलेंगे तो चाहे कहीं से आप इसका कहीं से छोटे से छोटा ही पार्टिकल आप निकालोगे तो वो आपको आयरन का ही मिलेगा। इसी वजह से प्योरेस्ट फॉर्म में हमने सबसे पहले एक नाम सीखा था एलिमेंट। तो जितने भी एलिमेंट्स आप जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो ये प्योरेस्ट फॉर्म में। अब मैं कंपाउंड की और मिक्सचर की बात जर्नल अगले एपिसोड में करूंगा। यहाँ से आपको फॉर्मूला मेकिंग बताए जाएंगे। फॉर्मूला मेकिंग में सबसे पहले ये चेकआउट करना है कि हमें केमिकल रिएक्शंस में किस तरीके से रिएक्शंस को करने के लिए हमें फॉर्मूला कैसे बनाए